Hello everyone, welcome back. So, in the last class, I have explained to you about field status variant and we have even done the configuration. Now, the next topic of basic setting is define number range. Now, before defining it, let me explain you what do we mean by number range. Now, what happened whenever you post any transaction, fine? You post a transaction either in FP50, FB60 or FP70, right? It is GL to GL transaction. It is vendor. When you post any transaction against a vendor invoice or payment or credit memo where there is an involvement of the vendor GL, then we use transaction code FP50, sorry, 60 and FP70 is for customer, right? Now what happened whenever you post a transaction, say in FP50, once you post it, there is a number which is generated. It could be any number. It could be 1,000. It could be 2,000. It could be 2001. It could be any number. Fine. So, how SAP will understand that the number should be 1,000, 2,000? How SAP gets it triggered? Like from where it get this number? So, the number from where SAP generates it, it's from what we have designated it, how we have designated it. Whatever number while creating, हम जब भी number range create करते हैं, we always allot a number range. And क्या होता है ना, say क्या होगा कभी भी suppose say for example मैंने number range दे के रखा है 1,000. First I have to give a code. Fine, there will be company code. Then I have to get, there used will be an NR code, which is number range code. Then there will be a number range, and then there will be NR status. Fine. I'm just explaining you, just concentrate in this thing. So how it works, से अभी मैं आप लोग को जी एंटरटेनमेंट का एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? तो Z89 होगा, ठीक है? अब एनआर कोड क्या होगा? एनआर कोड हमारा हो जाएगा, कुछ भी दे दो, आप 01 दे सकते हो, 02 दे सकते हो। सेम मैंने 01 दे दिया, ठीक है? फिर एक नंबर रेंज हमें देना होता है। नंबर रेंज से फॉर एग्जांपल आई गिव 1000 टू 1999, ठीक है? आप कुछ भी दो, इट्स ऑल ऑन यू। इट कैन बी 2000 टू 2999, इट कुड बी एनी नंबर, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर रेंज हो गया, ठीक है? ये हमारा एनआर कोड हो गया। तो अभी क्या होता है ना, ठीक है? और ये क्या होगा, अब देखो क्या होता है, जब भी आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे ना, चाहे वो FP50 में करो, 60 में करो या 70 में करो, ये हमारा ट्रांजैक्शन कोड है। अगर आप GL टू GL करते हो, GL टू GL का मतलब ये है कि उसमें ना कोई वेंडर इन्वॉल्व है, ना कोई कस्टमर इन्वॉल्व है। जैसे रेंट का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, तो इसमें क्या रियल जनरल एंट्री, इफ देयर इज ए रेंट payment, so what will be the entry? The entry will be rent account debit to, what will be the, what will be credit to bank account, right? We generally, this is a normal journal entry. Okay. So is there any involvement of any customer or vendor in this? No, right? It's just very simple that rent account will be debit all expenses and losses. Rent is our expense, we have to pay it, and through where we will pay, there will be a transaction of money into that, so our bank account will be deducted, okay? So credit debit what comes in, credit what goes out. So bank account will be credited because the amount has been deducted. The three golden principle of accounting. So I will not get into
in that detail, but this will be the normal entry if there is a rent payment, right? So here there is no involvement of neither vendor nor customer. इसमें ना vendor है ना customer है, तो हम FB50 पे ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है? जहां पे vendor या customer का involvement होगा वहां पे फिर हम वो let we discuss it later. तो सपोज हम FB50 पे हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, अपनी कंपनी कोड के अगेंस्ट, तो क्या होगा? एसएपी फर्स्ट चेक करेगा कि हमारी कौन सी कंपनी कोड के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन है, फिर उस कोड के अगेंस्ट क्या हमने एनआर कोड दे रखा है, फाइन, फिर उसके अगेंस्ट क्या नंबर रेंज है। अब से फॉर एग्जांपल एनआर स्टेटस ब्लैंक है, तो पहला जो हमेशा अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो फर्स्ट थिंग इट विल pick is what? The lowest number. So the lowest number is what? 1000. It will get updated with 1000. That what does it mean? इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रांजैक्शन आप करोगे तो जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा ना वो कौन से नंबर से जनरेट होगा? इट विल बी 1000, ठीक है? वाइल पोस्टिंग आई विल शो यू कि वो जब भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट नंबर का क्या होगा? इट द नंबर विल बी 1000. वाई 1000? बिकॉज पहले एससीपी चेक करेगा कि एनआर स्टेटस क्या था। एनआर स्टेटस पहले कुछ नहीं था, इट वॉज ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। तो एससीपी क्या करेगा? जो नंबर रेंज हमने दिया है ना, अलॉट किया है ना, उसमें से सबसे लोवेस्ट वाला पिक करेगा। लोवेस्ट कौन सा है? 1000 है, ठीक है? तो हमारा 1000 डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। यू कैन से सी वंस वी पोस्ट द ट्रांजैक्शन ना, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, ठीक है? अब इसी को एसएपी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग कि ट्रांजैक्शन तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया और ट्रांजैक्शन नंबर हमारा डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। तो SAP के लैंग्वेज में whenever we post a document number is generated. This document number जो ये है ना document number, this document number is it comes from where? It is derived from the number range. तो क्या होता है? नंबर रेंज में SAP पहले चेक करेगा एनआर स्टेटस क्या है। एनआर स्टेटस ब्लैंक है तो पहला जो नंबर वो पिक करेगा 1000, ठीक है? और ये एनआर स्टेटस को भी उतने जो भी जनरेट करेगा डॉक्यूमेंट नंबर उस नंबर से ही ये इसको अपडेट कर देगा। अब क्या होगा? अब सपोज हमने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, पहला ट्रांजैक्शन किया, डॉक्यूमेंट नंबर 1000 जनरेट हो गया। अब हमने दोबारा ट्रांजैक्शन किया तो इस बार क्या डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा? तो इस बार क्या होगा? सेम एसएपी चेक करेगा एनआर स्टेटस क्या है, एसएपी को दिखा एनआर स्टेटस 1000 है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर टू 1000? 1001, राइट? तो अभी क्या होगा? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर विल बी 1001, ठीक है? या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1000 प्लस 1, तो राइट, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना। इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 1001 ही होगा ना। तो जनरली डॉक्यूमेंट नंबर हमेशा क्या होता है? एनआर स्टेटस प्लस 1, राइट? वी कैन से इन दिस वे कि जो भी एनआर स्टेटस होगा उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, वो ही हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट नंबर हो जाएगा। पहले कुछ नहीं था तो क्या था? जीरो था। जीरो था तो जीरो प्लस जो भी है हमारा लास्ट क्या है? 1000 है, बिकॉज हमने ये नंबर रेंज दिया है, तो 0 प्लस 1000 विल बी 1000. नाउ आवर एनआई स्टेटस इज व्हाट? 1000. नाउ द नेक्स्ट नंबर जब हम लोग डॉक्यूमेंट जब पोस्ट करेंगे, सो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट होगा? एनआर स्टेटस प्लस 1, विच मीन्स 1000 प्लस 1, विच इज व्हाट? 1001. लाइकवाइज अब हम तीसरा करेंगे तो क्या होगा? एनआर स्टेटस प्लस 1, तो एनआर स्टेटस तब तक क्या हो जाएगा? दूसरा डॉक्यूमेंट जनरेट होगा तो एनआर स्टेटस हमारा क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। अब ये इससे अपडेट हो जाएगा। अब हम दोबारा तीसरा करेंगे, तीसरा भी वो क्या करेगा? 1001 प्लस 1 कर देगा, तो कितना हो जाएगा? हमारा 1002 हो जाएगा। तो लाइकवाइज वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होते रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर रेंज, ठीक है? व्हाट इज नंबर रेंज? व्हाट इज नंबर रेंज? नंबर रेंज का क्या फंक्शन है? नंबर रेंज हमें हम इज व्हाट? That whenever we post any transaction or any document,
a document number is derived, and this number is derived from where? It is derived from the number range which is been assigned against the NR code, है ना? And this NR code is assigned against what? Against the company code. Now if say for example you come across such question that suppose in interview if someone asks you कि 1000, suppose this has been updated with 1002, ठीक है? एज पर दिस एग्जाम्पल, एज पर ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये लास्ट क्या नंबर होगा? 1002 से हमारा एनआर स्टेटस अपडेटेड है, फाइन। अब क्या हुआ? सपोज if in an interview you are asked कि while posting the document system has generated document number 1003, ठीक है? सपोज अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि while posting the document system has generated document number 1003. I'm just giving an example, okay? Why the system has not taken 1000, 1001 or 1002? Why the system has derived 1003 as the next document number? So what will be the answer? The answer will be that because there can be a there is a situation, can it, there is no question mark, ठीक है? Because prior to this document number 1003 there were few of the documents which were being posted, from which document number like 1000, 1001 and 1002 has been already been derived. So the next document number, the SAP will check the NR status, and SAP finds that the NR status has been updated with 1002. So the next number, after posting the document, will be NR status plus 1. Hence 1002 plus 1 will be 1003. Therefore the next document number is what? 1003. So this should be your answer. Definitely the language can be different, but I meant to मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे कि हमेशा जब भी हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं एसएपी एनआर स्टेटस चेक करता है, एनआर स्टेटस से जो भी लास्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट नंबर होता है उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं और वो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर हो जाता है। अब ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 1003 हो जाएगा और एनआर स्टेटस भी हमारा फिर अपडेटेड हो जाएगा विथ 1003। फाइन, होप नंबर रेंज आपका क्लियर है, ठीक है? अब हम बिफोर इट लेट्स कॉन्फ़िगर इट, वी विल कॉन्फ़िगर इट। तो हम चलते हैं एसएपी लॉगिन पेज में, लेट्स ओपन इट, वी विल डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर नंबर रेंज। Fine. So what is the transaction code? The transaction code of defining the number range is FBN1. Fine. Now see here, as I was explaining you, it will ask for the company code. So what we will give? We will write our company code, which is ZE89, right? Press enter. Fine. And here we have to add our range. So here we will add, give the range. Now what is this number? You can give any number, 01, 02, 03. ठीक है, fine. I will give 01. ठीक है, year is 2000. We are in 2024 to 25 financial year, and I will give 1000 to 1999. It can be any number of your choice. ठीक है, आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो, but हमेशा याद रखना, it can't be like 1999 to 1000. होप आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू कि 1000 और हमने एक रेंज दे दिया कि आपको इस रेंज से नंबर पिक करते रहना है। अब आप डेफिनेटली आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि क्या होगा कि अगर 1999 तक हो जाएगा और अभी कंज्यूम्ड इट, तो डेफिनेटली पहली बात तो इतने नंबर्स कंज्यूम्ड होते नहीं है, और अगर कंज्यूम्ड हो भी गए देन वी विल हैव टू क्रिएट अनदर नंबर रेंज, है ना? तो ये चीज है। एंड सी हियर द नंबर रेंज, ठीक है, प्रेस एंटर। अभी क्या है, नंबर रेंज हमारा क्या है?
पूरा ब्लैंक है, राइट? क्यों क्यों ब्लैंक है? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको जब एक बार हम लोग ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, देन अगेन वी विल कम टू दिस नंबर रेंज एंड यू विल सी कि कैसे ये चेंज होता है, ठीक है? जनरली सी द नंबर का जो रेंज होता है ना, वो 10 डिजिट का होता है, बट बिकॉज टू सिंप्लीफाई इट, और क्योंकि हमें भी समझने को, आप लोगों को समझने को काफी इजी हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा नंबर ही लिया, विच इज 1000 to 1999, एंड दिस 6 डिजिट्स ऑफ जीरो इज पिक्ड बाय एसएपी इटसेल्फ, ठीक है? अब क्या है, ये हम कंट्रोल एस करेंगे और वी विल डू दिस टिक मार्क and see the changes were saved, ठीक है? Now our number range has been created, fine. अब क्या है, आप इसमें देखोगे ना, पहला चीज है कि ये एक्सटर्नल असाइनमेंट, अगर आप इसमें चेक मार्क करते हो, से फॉर एग्जांपल, तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम को आप बोल रहे हो कि आप मत पिक करना डॉक्यूमेंट नंबर, हम खुद डॉक्यूमेंट नंबर अपडेट करेंगे। दैट मीन्स इफ यू डू चेक मार्क हियर, then you have to update it with 1000. Every time you have to come here and give 1000, then 1001, you have to give your own number, ठीक है? तो और इन केस अगर सपोज गलती, एंड वन मोर थिंग कि एक डॉक्यूमेंट नंबर एक बार हम जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। द सेम जब आप दूसरा ट्रांजैक्शन करोगे तो यू कांट गिव द सेम डॉक्यूमेंट नंबर, इट हैज टू बी अनदर डॉक्यूमेंट नंबर, राइट? तो अगर आप ये चेक करते हो ना, देन एवरी टाइम यू हैव टू कीप अपडेट, यू हैव टू गिव योर डॉक्यूमेंट नंबर एंड कीप अपडेटिंग दिस एनआर स्टेटस, ठीक है? मैनुअली करना होगा। नाउ यू हैव टेकन दैट कंट्रोल, यू हैव अपने ये सिस्टम को से ये कंट्रोल हटा दिया है, ठीक है? तो ऐसे क्या होते हैं ना, हाई चांसेस होते हैं फॉर एरर, क्योंकि देयर कैन बी ए चांस जब आपने सेम नंबर ही दे दिया, आपको याद नहीं हो और आप सेम नंबर भी दे सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में दिस यू कैन सी दिस थर्ड वाला चीज, तो ये इस समय काम आता है कि इन केस इफ यू मैनुअली यू गिव, देन इन केस इफ यू कम अक्रॉस एनी मिस्टेक एंड आपको लगता है नहीं आपको कुछ चेंज करना है एनआर स्टेटस, देन यू कैन कम हियर एंड यू कैन सी हियर, राइट? चेंज एनआर स्टेटस, देन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन चेंज इट मैनुअली। सी, यहाँ पे मैं टाइप कर सकती हूँ कुछ भी, राइट? यू कैन चेंज इट मैनुअली, बट generally it is changes saved first. Yes, I hope I have made the changes, राइट? तो ये तब काम आता है जब आप एक्सटर्नल असाइनमेंट में चेक मार्क करते हो। एज ऑफ नाउ मैंने नहीं किया है, बिकॉज वाई वी हैव टू गो एंड डू इट मैनुअली, लेट द सिस्टम डिराइव इट, राइट? सो आपने ये क्रिएट कर दिया है नंबर रेंज। नाउ इफ आप, नाउ टेल मी वन थिंग कि आप ये देख रहे हो, राइट? दैट मीन्स कि यहाँ पे और ऑप्शन है नंबर रेंज देने का, राइट? वन है, तो यहाँ पे दिया है इंसर्ट लाइन, दैट मीन्स SAP has an option that we can add as many number range as we can, right? तो अगर ये दिया है, say for example, suppose मैंने +1 कर दिया और मैंने 02 दे दिया, again 2024, and I this time I can't repeat the number range, right? So what can I do? The year can change. Say for example, अगर मैंने 01 2024 1000 to 1999 दिया है ना, तो यहाँ पे मैं 01 2000 year can change, and if year is changed, then the number range can be same. But आप सबको सेम नहीं लिख सकते हो, either your NR code has to be changed या your year has to be changed. Now say I gave another number range as 2000 to 2999, ठीक है? मैंने कंट्रोल S किया and I saved it. Now tell me one thing. Fine, it got saved. Now tell me one thing. Once we start posting the transaction, ठीक है? हमने transaction post किया, ठीक है? Transaction post किया, SAP FBN1 में check करेगा हमारा setting. We will ZE89 के against SAP check करेगा कि what are the number range. Now SAP got confused कि यहाँ तो 01 भी है and 02 भी है, तो which number range will SAP will pick? Whether the SAP will pick 01
1000 to 1999 number range, और SAP will pick 0 to 2000 to 2 number range. ये SAP को कैसे पता चलेगा कि उसको इन दोनों में कौन सा पिक करना है? तो दिस नंबर रेंज, ये जो कि कौन सा नंबर रेंज पिक करना है, या the control of number range is in the hand of what? It is in the hand of document type. Here you can see this next topic. डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? पहली बात तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है? नाउ लेट मी रिमूव दिस एज आई एक्सप्लेन्ड यू. नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप? डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है ना, देखो, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो ना, तो वेरियस नेचर्स के होते. सम रिलेट्स टू वेंडर इनवॉइस, ठीक है, कुछ हो सकता है वेंडर क्रेडिट मेमो, ठीक है, कुछ हो सकता है वेंडर पेमेंट, and many more such transactions are there, right? Many more nature of transactions are there. जैसे ये वेंडर है, सिमिलरली हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, राइट? इट कुड बी एनी, इंस्टेड ऑफ वेंडर इट कुड बी कस्टमर, ठीक है. तो अब क्या होता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वेंडर से रिलेटेड हो या कस्टमर से रिलेटेड हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब, हाँ, व्हाट डू यू थिंक कि हम वेंडर इनवॉइस लिख के करेंगे, वेंडर क्रेडिट मेमो, इतने बड़े बड़े, मतलब वी राइट डाउन while posting the transactions, we write down this nature of transactions name? No. What happened? There is a shortcut of each thing given by SAP itself. SAP में बहुत सारे standard documents type दिए हुए हैं, and it is more than enough. It's not that कि वे हम खुद से अपना डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट नहीं कर सकते, डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, बट कुछ ऑटो, कुछ बाय डिफॉल्ट एसएपी ने दे रखे. अब जैसे अगर वेंडर इनवॉइस है, वेंडर का हमेशा के होता है, यू ऑलवेज रिमेंबर, वेंडर इज के एंड कस्टमर इज डी, ठीक है. अब if it's vendor invoice, then it will be KR. If it's vendor credit memo, then it will be KG. Vendor payment, it will be KZ. Similarly, for customer, it will be DR. For customer, it will be DG. It will be C. But for customer, it is D. And for customer payment, it is DZ. So what happened? This all are what? The standard given by SAP. ठीक है, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है, और इससे एसएपी को पता चल जाता है, सपोज कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं एंड इफ इट इज केआर, देन एसएपी कम्स टू नो, ओके, so what is this? It is vendor invoice. If it is DR, it is customer invoice. Fine. So now what I was explaining, in case if there is two number range, how SAP will understand that which number range it has to trigger. So what happened? Document type control the number range. How it control the number range? First we will see what happened. Look here, document type did, before that let me first read what is number range. As I told you, the transaction code is FBN1. While posting a transaction or document, system generate a transaction or document number based on the number range which we define in SAP, as I've explained you. Now what is this? Document type determine the types of transactions. Fine. Of course, once you see this KR, KG, KJ, or any of this, you will understand what nature of transactions is there, right? If it is KG, you will get to know, okay, it is about vendor credit memo. You do not have to remember. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. While practicing, ये सब कुछ automatically आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है? But क्या है कि by ये सब शॉर्टकट्स, जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये जो 2 डिजिट्स के जो लेटर्स होते हैं ना, इट इज बाय डिफॉल्ट गिवन बाय एसएपी, एंड दिस ऑल
explain respective documents nature, the transactions which takes place, ठीक है, और this all are respective document types, the nature of document type, ठीक है। तो आपको document type से क्या पता चलेगा कि किस nature of transactions पे आप डील कर रहे हो, whether वो invoice है, credit memo है या payment है। Plus it also control the number range, see here it's written as document number range. Now how does it control? Now let's see, we will, what is first, we will check what is the transaction code. The transaction code is what? OBA7, ठीक है, OBA7 है। तो हम क्या करेंगे, चलो पहले हम कॉन्फ़िगर ही कर लेते, ठीक है। आप क्या करोगे, /n OBA7 में जाओ, ठीक है। अगेन आई हैव टू लॉग इन, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। if it's very good then it stay मतलब active for longer duration, और else क्या होता है ना, ये log out automatically हो जाता है and we have to again log in, ठीक है। now what we will do, the transaction code is OBA7, ठीक है। अब OBA7 करो, now see there is so many transactions, you can create your own, but by default so many document type is being given by SAP by default. You can see here DJ customer payment, then you can see DR customer invoice, DG as I told you customer credit memo। और जनरली क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट हम कौन सा लेते हैं, GL, अगर हम GL to GL transactions करते हैं ना, if we do GL to GL transactions, then what is the document टाइप, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऐसे है। तो हाल फिलहाल मैं आपको GL to GL का ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। जैसे मैंने आपको रेंट का बताया था, तो GL to GL है ऐसे, ठीक है। तो हमें खुद से नहीं क्रिएट करना है, अब ये हमारा दिया है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट चेकआउट, हियर इज ऐसे, व्हाट इज दिस, GL अकाउंट टैब, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने डबल क्लिक किया, नाउ सी द नंबर रेंज, इट आस्क यू कि आपको कौन सा नंबर रेंज लेना है, 01 या 02। अगर मुझे 01 लेना है तो मैं 01 लिखूंगी, और जो चेंज करना है ना मैं यहीं पे करूंगी, सो दैट कि अगर मैं ये 02 दे देती हूँ ना, तो एसएपी क्या देखेगा, एसएपी फर्स्ट देखेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है। First SAP, whenever we post a transaction, first SAP will check what is द डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेसिपी क्या देखेगा कि उस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट हमारा विच इज व्हाट, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा हमारा, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप होगा, राइट। ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट हमारा एनआर कोड क्या है, व्हाट इज द एनआर कोड विच इज गिवन, ठीक है। एनआर कोड का मतलब यही होता है 01 या 02। अब मैंने क्या किया था, से मैं और एक विंडो ओपन करती हूँ आपके लिए, सो दैट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और मैं आपको साइड बाय साइड दिखा पाऊँ। ZD89 है, एंटर करो, इंटरवल करो, ठीक है। ये एनआर कोड है, या तो 01 है या 02 है। अब वही मैंने आपसे आपको बताना चाहा ना कि एसएपी को कैसे पता चलेगा कि इसको 01 लेना है या 02। एसएपी को इधर से पता चलेगा कि आपने 01 दे रखा है या 02 दे रखा है, तो एसएपी देखेगा अच्छा 01 है। नाउ एसएपी विल गो टू एनआर रेंज, हियर वी हैव टू एंटर आवर कंपनी कोड, ठीक है। यहाँ से कंपनी कोड एसएपी चेक करेगा एंड नाउ एसएपी विल अंडरस्टैंड, अच्छा मतलब आप ये देखो, number range is logged by n by 85 which is my username and what is this log, ये वही लॉग है जो मैंने अलग से एक विंडो ओपन किया था FBN1 में, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन FBN1। तो और अभी जब मैं ओपन करी थ्रू OBA7, तो वो भी हमें कहाँ लेके आ रहा है, FBN1 में लेके आ रहा है। तो इस मतलब आप डॉक्यूमेंट टाइप में एंटर करोगे, डॉक्यूमेंट टाइप में फर्स्ट इफ इट्स GL to GL ट्रांजैक्शन, तो ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप में जाओगे। ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप को जब आप डबल क्लिक करोगे, इफ आई गो बैक अगेन टू लेट यू पीपल सी अगेन, ठीक है। आप देखो फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंट टाइप, आप ये नीचे देख पा रहे हो,
transaction. What is this? OBA7. तो OBA7 में if it's GL to GL transaction, by default SAP will pick this. ठीक है, तो हम ऐसे में गए. ठीक है, we if you want you can change it, but generally I prefer using the standard one. ठीक है, तो अगर SAP ने देखा कि अच्छा FB50 पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, FB we have posted a transaction, in FB50. In FB50 SAP will check कि क्या है डॉक्यूमेंट टाइप. ठीक है, SAP ने देखा डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे है. ठीक है, फिर SAP क्या करेगा, SAP चेक करेगा ऐसे है, फिर ऐसे में against क्या हमारा number range है, whether what the number range we have given. Now it's all on us whether we want to give 01 02 या any other number range जो भी, अगर it's all on us. ठीक है, तो हमने 01 दिया, तो SAP क्या चेक करेगा, SAP will check what NR code. ठीक है, from NR code ये एक ऑप्शन होता है नंबर रेंज इंफॉर्मेशन का. ठीक है, यहाँ से SAP चेक करेगा कौन सा कंपनी कोड है, ZE89. What will SAP will check? SAP will check the company code. ठीक है, from here. After company code, SAP will what check? SAP will check कि वो जो NR कोड में हमने दिया था 01 उसके अगेंस्ट कौन सा नंबर रेंज है. एंड फ्रॉम हियर SAP will check the number range. And from the number range, what SAP will do? SAP will pick the lowest number because हमने इस external पे check mark नहीं किया. So we have given permission to the system itself कि आप खुद से number generate करो. तो अभी NR status क्या है? 0. So it will pick what? 1000. So here will be NR status. SAP will check the NR status. Fine. And NR status के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट नंबर या आप कह लो ट्रांजैक्शन नंबर है वो जनरेट होते चलेंगे. फाइन. सो नाउ इफ वी गो बाय दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट डॉक्यूमेंट टाइप आल्सो कंट्रोल द नंबर रेंज. फाइन. अब आई अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ये मेंशन किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंज भी कंट्रोल करता है. डॉक्यूमेंट टाइप से ही एसएपी को पता चलता है कि क्या डॉक्यूमेंट टाइप है, उस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट एनआर कोड क्या है, एनआर कोड के अगेंस्ट कौन सी कंपनी कोड है, उस कंपनी कोड के अगेंस्ट नंबर रेंज क्या है, एंड उस नंबर रेंज के अगेंस्ट एनआर स्टेटस क्या है. एंड एनआर स्टेटस +1 will be our next document number. Right? Fine. So this is about document type. And one more thing which document type control is it also control the field. Fine. डॉक्यूमेंट टाइप और एक चीज कंट्रोल करते हैं, वो क्या है, अगर आप बैक करो वापस से FBN1 से हम निकलते हैं. ओके, अगर आप /NOBA7 वापस से करोगे ना डॉक्यूमेंट टाइप का ट्रांजैक्शन कोड एंड से हमने ऐसे, अभी मैं ऐसे का एक्सप्लेन कर रही हूँ GL to GL, तो आप ये देखो ये डॉक्यूमेंट टाइप का पेज है. फाइन. एंड इसमें क्या है, दो फील्ड है, रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट. तो डॉक्यूमेंट टाइप also control the fields of header data. Now what is this fields of header data? fields of header data का अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ fields of header data. Now what is this? अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था हेडर डेटा एंड लाइन आइटम डेटा. ठीक है, अगर मुझे GL to GL पोस्टिंग करना है तो FB50 ट्रांजैक्शन कोड है, ZE89 मेरी कंपनी कोड है. ठीक है, तो ये जो पेज है ना, ये ऊपर वाला होता है हेडर डेटा और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है लाइन आइटम डेटा. लाइन आइटम डेटा इज कंट्रोल्ड बाय द फील्ड ऑफ लाइन आइटम डेटा इज कंट्रोल्ड बाय फील्ड स्टेटस वेरिएंट, जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. करेक्ट. एंड जो ये फील्ड है ना, इसमें भी ओनली टू फील्ड which is what, reference field and document header text. Only this two field is controlled by what? This two field are controlled by document type. अगर आप document type का पेज ओपन करो which is C,
OBA7 ये रहा ट्रांजैक्शन कोड, तो आप यहाँ पे देख पाओगे व्हाट इज दिस रेफरेंस नंबर एंड व्हाट इज दिस इज द रेफरेंस नंबर इट इज टॉकिंग अबाउट एंड अनदर वन इज व्हाट डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट. सो हियर इज द डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, राइट. सो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो दो फील्ड है हेडर डेटा में, ये दो फील्ड भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल कर रहा है. फाइन. तो अब ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस डेफिनेशन में था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि डॉक्यूमेंट टाइप पहले व्हाट आर द रूल. It helps us to know the type of transaction, right? What are the type of transaction? It could be of any nature: vendor invoice, vendor credit memo, vendor payment, right? So एक तो ये हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है, राइट. दूसरा चीज क्या बताता है, इट कंट्रोल द नंबर रेंज, जो मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताया था. सो इट कंट्रोल द नंबर रेंज एंड ऑल्सो इट कंट्रोल द फील्ड ऑफ हेडर डेटा. एंड व्हाट आर दोस फील्ड, दोस टू फील्ड्स आर रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट. सो see, I am explaining you all this so because it might be when मतलब you can be asked during an interview that what is document type. So अगर आप खुद सोचो, आप इतने इन डेप्थ में अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी या उनको जो who just say कि डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल और डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. यू टेल मी दिस. If you say that it determine the type of transaction or the nature of transaction, it also control the number range and it also control the field of header data which are reference field and document header text. See the kind of impact you will be giving to the interviewer. उनको लगेगा you have, though you are a beginner or entry level, but you have understood everything and आपको एक large picture है कि how the things work. जब आप काम करते हो तो यू आर नॉट नेग्लिजेंट कि आपने बस एक ही रटा हुआ जो भी गूगल में भी अगर आप देखोगे तो रटा हुआ एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो जो बाकी लोग दे रहे हैं. नो, अगर आप ये सब चीज बताते हो देन इट रियली शोज कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है. You have knowledge of it. And also one more thing it control, it also control what, it also control one more thing, and it also control the exchange rate. Now, what is this exchange rate? We will come this topic in later classes, but just to let you know, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ. Can you see here? Exchange rate type of foreign exchange. ये पूरा एक टॉपिक रहेगा. ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि ये इवन जो एक्सचेंज रेट है ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, उसको भी कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट टाइप. फाइन. सो दिस इज द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप. Fine. If someone asks you how the number range will be triggered by SAP, so number range कैसे triggered होता है? With the help of document type, and you can explain this. If you explain this, it will give another impression to the interviewer कि you have really worked like practically also. ऐसा नहीं कि हमने रटा रटाया करा है. आप if you say कि whenever we post a transaction, system check the document type, against the document type it check NR code, against the NR code the company code, against company code the number range, and from number range it picks the it pick the number. First, it will see the NR status. If the NR status is blank, it will pick the lowest number from the number range. And if NR status is updated, that if there is any number in the NR status or NR status is updated with any particular number, then that number plus one we add on it, and that will be the next document number. See, just one liner and giving 3-4 sentences do make a difference, right? And one more thing, what happened? This is a नंबर रेंज. क्या होता है ना, नंबर रेंज हमारा ईयर एंड एक्टिविटी है. ठीक है, नंबर रेंज इज व्हाट, ईयर एंड एक्टिविटी. हम हर ईयर एंड में नंबर रेंज चेंज करते हैं. अब ये कैसे समझ, चलो ऐसे समझते हैं कि से 01 हमारा एनआर कोड है. ठीक है, 2024 में. ठीक है, एंड द स्टेटस इज द number range is 1000
ठीक है, 1,999, ठीक है। ये हर एंड हमें चेंज करना होता है। हम एनआर और सपोज नेक्स्ट ईयर भी हमने 01 से नेक्स्ट ईयर 2025 1000 एंड 1999 रखा, ठीक है, सेम ही हमने रखा। अब है ना, आप ये बोलोगे कि हमें ईयर देना क्यों जरूरी है, वाई वी गिव द ईयर। तो ईयर देना इसलिए जरूरी हो जाता है, ओके, सो ईयर देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल सपोज 2024 है, ठीक है, हमने कोई रेंट का ट्रांजैक्शन किया और कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, 1000 रेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट ईयर हमारा जरूरी नहीं है ना कि 1000 रेंट का ही हो सकता है हमने इंश्योरेंस का कोई ट्रांजैक्शन किया हो और 1000 नंबर उस वक्त, क्योंकि the system has to pick the lowest number if nothing is updated, so system has picked 1000 for 2025, ठीक है। तो अब अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कैसे पता चलेगा, जस्ट बाय लुकिंग से, ये दो नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट 1000 रेंट 1000 इंश्योरेंस, हमें क्या पता चलेगा कौन से ईयर का ट्रांजैक्शन है। हाउ वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज दिस 1000 फॉर, सपोज हमें नहीं पता, ठीक है, हमें पता ही नहीं कि 1000 रेंट का है या 1000 इंश्योरेंस का है, वी जस्ट नो देयर इज अ 1000 डॉक्यूमेंट नंबर। नाउ हाउ वी विल नो व्हाट इज दिस 1000 डॉक्यूमेंट नंबर नेचर इज, वेदर व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन वाज इट। सो टू मेक इट नोन हमें ईयर देना होता है, ईयर जरूरी भी होता है बिकॉज जब आप चेक करोगे ना /FB03 में आप आओ, अगेन इट गॉट लॉग्ड आउट। आप जब है ना व्हेन यू गो यू वांट टू चेक कि F1000 का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, तो आप FB03 करोगे ना, सी हियर, you have to write your document number, you have to give your company code and even it asks for the fiscal year कि आपको कौन से साल का देखना है, because it's not necessary ना नंबर, क्योंकि नंबर रेंज ईयर एंड एक्टिविटी है, हर ईयर एंड में आपको चेंज करना होता है। अब इट्स ऑल ऑन यू वेदर यू वांट टू गिव 01, यू कैन गिव 02 एज वेल, यू कैन कीप 1000 to 1999, you can keep 2000 to 2999, but in case if you keep the same and you want to know कि ये 1000 का क्या है, what is the nature, तो the system will ask you tell me the year because system doesn't know now which 1000 you want to see, आपको कौन सा 1000 देखना है आपको, क्योंकि आपके सिस्टम नो कि आपके ट्रांजैक्शन में एक 2024 में भी 1000 का डॉक्यूमेंट नंबर है और एक 2025 का भी है, तो आपको कौन सा देखना है, इसलिए वी गिव दिस फिस्कल ईयर, right? The reason behind giving the fiscal year. Now, one more thing, why we use, this is all done, fine. Now, why we, as I told you, posting period variant, fiscal year variant, field status variant, ठीक है, ये हम क्या है ना क्लाइंट से नहीं पूछते, ये हम खुद क्रिएट करते हैं। बट यू टेल मी वन थिंग, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम एसएल ग्रुप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस कंपनी का भी हम काम कर रहे हैं, जी ग्रुप, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं सब्सिडरी कंपनी, सपोज जी एंटरटेनमेंट है, डिश टीवी है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज चेक आउट माय ऑल द प्रीवियस वीडियो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है सभी चीजों को। और लाइक सपोज एबीसी लिमिटेड हुआ, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, XYZ लिमिटेड हुआ एंड हियर आर many other companies, say 50 subsidiary companies, because SL group or G group is itself a very big company, right? तो अगर suppose 50 और कंपनी सब्सिडरी है, ठीक है, सपोज 50 और सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या हम
हम एक एक का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाते क्रिएट करते रहेंगे. You can understand how much, see, we are creating it. वो क्रिएटिंग, अगर हम इंडिविजुअल भी इन सबको का क्रिएट करेंगे अलग अलग से, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. एंड व्हेन all entire subsidiary company are following the same fiscal year which is April to March. तो अगर सभी सेम कर रहे हैं तो हमें पता है अप्रैल पहला पीरियड होगा, मई सेकेंड पीरियड होगा. आई होप कि अगर आप वापस से फिजिकल ईयर वेरिएंट का वो जो वीडियो है देखोगे तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो obvious है the period will be same, the number of days will be same, that creating it again and again will be too time consuming, right? So what SAP says? SAP says that so SAP has given the ये concept of variant. Variant का मतलब ही होता है reusable setting. ठीक है? Variant means it is a reusable setting. Reusable setting का मतलब होता है कि the same variant can be used for the same variant can be used for another company code. Fine. Another कंपनी कोड. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जी एंटरटेनमेंट का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट या एनी अदर वेरिएंट क्रिएट कर लिया है, तो वापस से इन सब सब्सिडरीज के क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. अगर वो सेम सब्सिडरी है और सेम ही फिजिकल ईयर यूज कर रहे हो, तो सब सेटिंग से सेम होगा, तो बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? यू कैन यूज द सेम वेरिएंट. दैट मीन्स कि हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके सेव कर लेंगे, कॉपी करके सेव कर लेंगे. गॉट इट? अगेन मैनुअली क्रिएटिंग इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो सी हाउ मच टाइम सेविंग इज देयर, राइट? So that is the concept of variant. Variant means reusable setting. The same variant, if provided the company is using the same fiscal year और same ही उनका सब कुछ nature of transaction है, तो it's always advisable to use the same variant so that कि बाकी सब 50 रेस्ट ऑफ द सब्सिडी कंपनी में एक बार क्रिएट करने के बाद हम वापस सबके लिए कॉपी कर सकते हैं, हमें नया क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. अब आप ये बोलोगे कि सपोज से फॉर एग्जांपल देयर इज ए कंपनी LMN और ABC DEF. ठीक है, DEF ही ले लेते चलो. ठीक है, लेकिन ये अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये कंपनी हमारा अलग से अक्टूबर टू सितंबर यूज करें, तब क्या करेंगे? तो तब क्या करना है? कुछ नहीं, इसके लिए हम अलग से क्रिएट करेंगे. तो इसके एक है कि सबके लिए अलग से क्रिएट करना और एक एक्स्ट्रा एक के लिए या दो के लिए अलग से क्रिएट करने में देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो बाकी के लिए तो स्टिल इट इज सेम, बट एक के लिए ही हमें चेंज करना है. दैट इज मैनेजेबल, है ना? So this is the concept of variant. What is variant? Variant, it is a reusable setting. And what does it mean? That the same variant can be used for another company code or multiple company code. Fine. So this is about number range and document type. Fine. And let me explain you. I have even explained you the credit memo. If you remembered कि मैंने बोला था vendor credit memo, customer credit memo, and there can be some people जिनका accounting background से जो नहीं है या होते हुए भी people are not aware about this concept. The credit memo is nothing. Whenever vendor credit memo is when we return some goods to vendor, we have purchased, then we due to some bad quality or some issue related or some defect होने के कारण या any reason we return it, right? So when we return it to the vendor, it is vendor credit memo, and when we get return from our customer, it is customer credit memo. That's so this is all about today's class. Thank you and have a good day.